scholars and other guests who had come out of enthusiasm. Today's speaker is Mr. Barjatia, Sri Mayankji Barjatia, and his topic is very interesting actually. He has given a new dimension, I should say, to Bhaktambar's slokas and some kind of geometrical interpretation. This is something new for me also. Although he has visited our institute in Ahmedabad about 5 years ago or so, and he has delivered a lecture on this. But this is, I think, a very interesting topic that how geometrical things can be actually linked with Bhaktambar. There is one Australian scientist also. His name is Mr. Klein. He has worked on this mysteries behind this number 108, and he has published many books on this, and he has changed his name from Mr. Klein to Mr. Jane 108. So he is also working on the geometrical things, and a lot of work is going on in this area. If we look at Sri Yantra, then also there are geometrical things are there. So this is very interesting topic. I will not go in detail, but I will just introduce today's speaker. Shri Mayank Barjatia. Mr. Mayank Barjatia is an bioarchitect and building biologist by profession since 1998. He is a human energy expert and bioenergetician. Since last 10 years, he has taken the task of bringing hidden Jain knowledge to the scientific community. His search took him to Germany and France to study Jain sacred geometry. Mayank is a sadhak doing research under guidance from Guruvar Vairagya Ratiji Amara Sahab, Sudh Bhavan Pune. His research in Bhaktambar Stotra is appreciated and fine-tuned by Gurudev Pranam Sagarji Maharaj Sahab and awarded by Naye Padma Sagarji Maharaj Sahab. Mayank is he's teaching the Jain sciences in Kunda Kunda Gyanpeeth Indore and has conducted several talks and online programs based on Jain human and Vastu sciences. At present, he is working in Jain quantum physics, Anekantvad, and trying to decode process to develop a Visishta Mati Gyan in modern times. So, I invite Sri Mayankji Barjatia to start his webinar, his lecture. Before Barjatia Sahab starts his lecture, we'll like to welcome Dilip Jain Sahab, who has just joined the JS. So let us welcome him. And there are many people, distinguished people who are there, who are attending this lecture. So welcome to everybody. Thank you, sir. Yeah, okay, sir. So let us begin with the talk, Barjatia Sahab. Namaste. Sadar Pranam. Bhandari ji, Pokarna ji और Gyanwar who has joined, researchers. I am very proud and very happy to be part of this talk with Scientific Research Foundation of Ahmedabad. And I can see a lot of learned research scientists who has come. So I am a very small person who has started understanding Jainism since last 10 years. और जैसा कि पोखरना जी ने बोला, मैं एक साधक हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, और इस सीखने में मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जर्मनी और फ्रांस में जब मैं मेरी मास्टर्स कर रहा था बिल्डिंग बायोलॉजी में, तो बायोएनर्जेटिक्स के थ्रू मैंने सेक्रेड ज्योमेट्री, पवित्र ज्यामिति में काम करना शुरू किया था। और पवित्र ज्यामिति जब मैंने सब्जेक्ट चुना, तो वहाँ पे जर्मन और यूरोपियन चर्चेस की ज्योमेट्रीज और शेप्स पे हम काम करते थे। तब मुझे पता चला कि हमारे जैनिज्म में भी बहुत अद्भुत सिंबल्स हैं। अष्टमंगल मेरे सामने आए, और उसके बाद ये पता पड़ा कि देयर इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक विच हैज अ मैजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी, जिसको हम अद्भुत
वाइब्रेशन कहते हैं भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं की। उस अनंत ऊर्जा मैंने नाम दिया क्योंकि वो अनंत, it has an infinite dimension. Why it is infinite dimension? I'm going to take you to the slideshow which I have tried to prepare following certain norms and certain systems. तो आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं मुझे लगता है, और इस स्लाइड में आप देखेंगे हमने नमोकार मंत्र की भगवान की आराधना से शुरुआत करेंगे। मेरा नाम आप जानते हैं, मैं 1998 से काम कर रहा हूं एज एन आर्किटेक्ट, बट मेरा अभी 10 सालों में रिसर्च बैकग्राउंड के थ्रू भक्तांबर स्तोत्र और जैन साइंसेज में थोड़ा सा लगाव बढ़ने के कारण मैंने अपना ध्यान थोड़ा सा जैनिज्म की तरफ किया है। मेरे गुरुदेव हैं वैराग्य रति जी महाराज साहब, शुद्ध भवन पूना, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रमाण सागर जी महाराज साहब ने मेरी किताब में मेरी बहुत मदद की। 48 अनंत ऊर्जा की एक मैंने किताब लिखी है जिसमें हमने इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट किया है। वैराग्य रति जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में ये पूरी किताब लिखी गई थी। प्रमाण सागर जी महाराज साहब ने भी उसमें मदद की थी, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। नए पदम सागर जी महाराज साहब ने मुझे बम्बई में एक प्लेटफॉर्म दिया और एक छोटा सा अवार्ड सेरेमनी में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा और पवित्र ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट, अब मैं बहुत सारे डायमेंशंस में आने वाला हूँ। भंडारी जी, पोकरना जी और दूसरे विद्वानगण मुझे थोड़ा सा मेरी नॉलेज पे थोड़ा सा जजमेंट कम करें, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट अनेकांतवाद से लेके क्वांटम फिजिक्स और को एग्जिस्टेंस की जो मैंने बात भंडारी जी के लेक्चर सुन के सुनी, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और उसी से कुछ कंटेंट मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। क्योंकि जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हम हर डायमेंशन की बात करते हैं, और मैंने ये देखा कि जैन धर्म का मूल तत्व जो प्रोसेस है जैनिज्म में, वो हमारे इन सिद्धांतों पे आता है। मैटर, स्पेस, ईथर, धर्मस्थिका, अधर्मस्थिका, टाइम, कॉन्शियस बॉडी, एंड दिस होल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन these 6 डायमेंशन। और ये 6 तत्व अक्षय, अविनाशी, अमर, अनंत और सतत बदलने वाले हैं। और ये 6 तत्वों की डायमेंशन को लेके ही मैंने 10 साल पहले भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा को स्टडी की थी। बट भंडारी जी और पोकरना जी से बात करके मुझे इसमें नए डायमेंशन मिले, तो उनका भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस रिसर्च में मेरी मदद की है। ध्वनि, कंपन, प्रकाश, रंग, समय, अंतरिक्ष आदि ये सभी तत्व हैं जिनके कारण ये साउंड वाइब्रेशन और ये रेजोनेंस क्रिएट होता है। रेजोनेंस इज अनुनाद। इस प्रोसेस को मैंने समझने की कोशिश की और ये समझा कि ध्वनि जो साउंड है वो रेजोनेंस एक पैटर्न तैयार करता है, और ये पैटर्न का जो प्रोसेस है वो अंतरिक्ष में ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं से कनेक्ट हो जाता है और ये एक लूप की तरह मूवमेंट करता रहता है। और ये जो पैटर्न्स हैं वो भी हमारे शरीर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमारे शरीर में पैटर्न्स हैं, ज्योमेट्रीज हैं, इनफाइनाइट सिस्टम, एनर्जी फील्ड, एनर्जी सिस्टम में पैटर्न्स हैं, और ये एनर्जी फील्ड्स हैं, जितनी भी लेयर्स हैं, उनको हम पर्टिकुलरली, मैं बिल्डिंग बायोलॉजी में वास्तु और एनर्जी के लिए मेजर करते आया हूँ मेरे प्रोफेशन में। बट मैंने जब ये देखा कि ये पर्टिकुलर डायमेंशंस साउंड वाइब्रेशन से चेंज होती हैं, तो भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा की इस वाइब्रेशन को मैंने पढ़ने की कोशिश की साउंड वाइब्रेशन के थ्रू। और इन्फिनिटी, जैसा मैंने आपको बताया, इन्फिनिटी लूप में ये घूमता रहता है ये वाइब्रेशन, और हर शब्द, हर पैराग्राफ और हर छंद का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होता है, और उसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन को मैंने डिकोड करने की कोशिश की साउंड वाइब्रेशन और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में। क्योंकि हर शब्द जिस तरह से छंदोध्याय और तरह तरह की किताबों में ये वाइब्रेशंस की जब हम साउंड की बात करते हैं तो हर शब्द को 80 तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है, और हर शब्द का प्रोनाउंसमेंट, उसकी प्रोनाउंसिएशन से ही उसकी पर्टिकुलर वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तो ओम को अगर हम अलग अलग तरीके से बोलें तो अलग अलग तरीके की वाइब्रेशन आएगी, और उसका प्रोसेस, उसका फंक्शन, उसका इफेक्ट शरीर पे, पर्यावरण पे अलग अलग तरीके से होगा। तो मैंने ये देखा कि भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाएं, भक्तांबर स्तोत्र के हर शब्दों में एक पर्टिकुलर एनर्जी सिस्टम है, और उस पर्टिकुलर एनर्जी सिस्टम को डिकोड करने के लिए मैंने इस शरीर के साथ उसका कनेक्शन शुरू किया, और ये देखा कि हर स्तोत्र में, हर शब्द में, हर पैराग्राफ का एक पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन है,
और उस पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन को जोड़ने के लिए मैंने 4 रुडिमेंट्स को रिवील करने की कोशिश की है, जो भक्तांबर स्तोत्र की अंदर छुपी हुई आत्मा है, जो उसका सोल है, जो उसकी पर्टिकुलर प्राण शक्ति है स्तोत्र की, वो है साउंड में, ज्योमेट्री में, स्मेल में। और इन सब का योग, इन सब का जोड़ अगर मिलता है तो वो ऊर्जा क्रिएट करता है। इसलिए एनर्जी का मैंने चौथा चरण लिया है। मंत्र से होता क्या है, ये मंत्र हमें अच्छे क्यों लगते हैं और ये हमारे शरीर में जाने के बाद किस तरह की साउंड वेव क्रिएट करता है, उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। मंत्र को मैंने छंद और आवृत्ति से कनेक्ट किया है और ये पता करने की कोशिश की है कि हर मंत्र में एक साउंड का अलाइनमेंट है, एक अमलमगेशन है, और इस सिलेबल में, इस पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशन में तरह तरह की ऊर्जाएं हमारे शरीर से, हमारे शब्दों से बाहर निकलती है, और ये ऊर्जाओं का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या 1000 साल पहले भक्तांबर स्तोत्र जब मानतुंगाचार्य ने पढ़ा था, तो क्या एक्चुअल में ताले टूटे थे, एक्चुअल में बीड़ियां टूटी थी? और मैं जब रिसर्च करने गया तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये साउंड वाइब्रेशन की जो उन्होंने अपने मुंह से, अपने शरीर के अंदर से जो भाव के साथ, जो स्तुति, आदिनाथ भगवान की स्तुति के साथ जो वाइब्रेशन छोड़े थे, वो शायद इंफ्रावेव्स होंगे। क्योंकि इंफ्रावेव्स की साउंड वाइब्रेशन अगर हम क्रिएट कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, तो इंफ्रावेव्स बड़े बड़े चट्टान और डायमंड तोड़ता है आज। फ्यूचर वॉर भी इंफ्रावेव में होना है, क्योंकि हम वो सुन नहीं सकते। दिस इज बिलो 20 हर्ट्ज। ह्यूमन फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज तक है जो ऑडिबल है, जो हम सुन सकते हैं। बिलो 20 हर्ट्ज की इंफ्रावेव साउंड वाइब्रेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मानतुंगाचार्य में वो पावर था, क्योंकि वो एक बड़े वैज्ञानिक थे, एक बड़े आचार्य थे। उन्होंने हर लेवल पे, फ्रॉम बॉटनी टू एस्ट्रोलॉजी टू जियोलॉजी टू एनवायरमेंट टू परमाणु टू एटॉमिक वाइब्रेशन, सब चीजों का उल्लेख उनके 48 सूत्रों में किया है। तो हो सकता है कि वो अपने शरीर के अंदर से, उस भाव से, उस ध्यान से, उस स्तुति से इंफ्रासाउंड निकालते होंगे। और वो इंफ्रासाउंड कैसे निकलता होगा, वो एक साउंड वाइब्रेशन की पद्धति से हम पता कर सकते हैं कि ये साउंड वाइब्रेशन, अगर वसंतलिका छंद को, वसंतलिका छंद में भक्तांबर स्तोत्र को एक पर्टिकुलर ध्यान से, एक स्तुति से, उस रिदम में, उस स्ट्रक्चर में, उस मीटर में अगर गाया जाए या प्रोनाउंस किया जाए, तो वो एक अद्भुत वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है कि क्या हम जो नॉर्मल इंसान हैं, जो डे टू डे वर्किंग में भक्तांबर स्तोत्र की शब्दों को दोहराते हैं, क्या हम वो वसंतलिका में गा पा रहे हैं? क्या हम वो इंफ्रासाउंड निकाल पा रहे हैं? क्या हमारी स्तुति, हमारी साधना उस वाइब्रेटरी टोन में, उस पर्टिकुलर भक्तांबर स्तोत्र के शब्दों को जस्टिफिकेशन में बोल पाती है? जैसा मैंने कहा कि हर शब्द को अच्छी तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है, तो हमारे पास इस तरह के प्रमाण हैं जहां पे लोग 48 स्तोत्र 20 मिनट में गा देते हैं। अब स्तोत्रों को जब हम गा रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो क्या शब्दों की परिकल्पना, जो वो सिलेबल है, जो रिदमिक वाइब्रेशन है, जो रिपीटेटिव रिदम्स हैं, क्या वो क्रिएट हो पा रहे हैं? और क्या हमें वो पावर है कि हम भक्तांबर स्तोत्र को रिपीट कर सकें? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को लेके मैंने आगे रिसर्च की और ये कोशिश की कि क्या हम भक्तांबर स्तोत्र को बोलने की जगह सिर्फ सुने, और क्या वो शब्द सुन पाएंगे हम? क्योंकि जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी मुनिश्री हैं, आचार्य श्री हैं और साध्वी जी हैं, सब लोगों से मैंने सुनने की कोशिश की, भक्तांबर स्तोत्र की रिकॉर्ड किया, और हमारे स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे साउंड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जनरेशन में देखा, तो मुझे कहीं भी वो पर्टिकुलर वेव फॉर्मेशन नहीं मिला जो एक्चुअल वसंतलिका छंद में वो फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सके। तो मेरा ये रिसर्च का सबसे बड़ा आउटकम और कंक्लूजन ये है कि हमें भक्तांबर स्तोत्र सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, और स्तोत्र की वाइब्रेशन सुननी चाहिए, क्योंकि शब्दों को प्रोनाउंस करने की शक्ति, प्रोनाउंस करने की प्रोसेस, वो स्थिति, वो ध्यान, वो साधना हम नहीं कर सकते। इसीलिए भक्तांबर स्तोत्र में जो हमें वाइब्रेशन से अभी फर्क पड़ रहा है और जो अच्छी चीजें मिल रही हैं, वो कुछ परसेंटेज है। वो अगर हम सुनने लगे तो उस आवृत्ति, उस साउंड फ्रीक्वेंसी में हम उसको ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे, और ये जो हीलिंग और ये अद्भुत वाइब्रेशन है, बहुत चमत्कारिक मैजिकल सिस्टम क्रिएट कर सकती है, जो कि ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ में काम आएगी, पर्यावरण और एनवायरमेंटल
अपलिफ्टमेंट में भी हम इसको काम ले सकते हैं। जिस तरह से आज अग्निहोत्रा किया जाता है सुबह और शाम, वैसे ही अगर साउंड वाइब्रेशन को हम अपलिफ्ट करें और मंदिरों में और हमारे आश्रमों में इसको बजाया जाए, साउंड वाइब्रेशन को, शब्दों को नहीं, तो क्या उससे इफेक्ट चेंज हो सकता है। ये एक कंक्लूजन मैंने निकाला है। इस तरह की 48 फ्रीक्वेंसीज हैं, हर फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। हर स्तोत्र के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, बट मैंने यहाँ पे कुछ स्तोत्रों की फ्रीक्वेंसीज दी हैं, उनकी बीज मंत्र, मंत्र, स्तोत्र और वसंत लिखा छंद, ये कनेक्शन लिया है। 6 बीज मंत्रों के साथ 48 स्तोत्रों का कनेक्शन लिया है, क्योंकि हर स्तोत्र का एक कोर मंत्र है और वो मंत्र बीजाक्षर है और वो बीजाक्षर की भी ज्योमेट्री है। तो उस ज्योमेट्री पे हमने काम किया है। इसलिए मैं भक्तांबर स्तोत्र, क्योंकि एक अद्भुत मंत्र है, अद्भुत श्लोक है, अद्भुत स्तोत्र है, अद्भुत रिद्धि है, तो मैं नहीं चाहता और मैं नहीं जानता कि इसके साथ हमें दूसरी रिद्धियां और मंत्र यूज करने चाहिए, क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र के 48 श्लोक अपने आप में इतने पावरफुल है कि उन्हें किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन बीज मंत्र और बीजाक्षर को हम उसका एक बेस मान सकते हैं, कंक्लूजन मान सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था मेरे बात का, आपको समझाने का, ज्योमेट्री साउंड वाइब्रेशन व्हिच अल्टीमेटली टेक्स मी टू द ज्योमेट्री। क्योंकि every sound, every mantra should have a yantra around it. There is the whole science of mantra and yantra says that, again, it has been researched. I have taken the documentation from a lot of people who have worked on sacred geometry. They say without sound there is no geometry, and without geometry there is no sound. तो 48 भक्तांबर स्तोत्र के मंत्र तो थे, यंत्र किधर थे? और यंत्र होना बहुत जरूरी है। 1000 साल पहले मानतुंगाचार्य ने उन यंत्रों की भी परिकल्पना की होगी, उसको भी ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया होगा। और चूंकि हमारा जैनिज्म का साइंस वर्बल एक दूसरे को दिया जाता था, तो हो सकता है कि वो यंत्र घूम गए और वो यंत्र किसी के पास नहीं आ पाए, और वो यंत्र लुप्त होने के कारण मैंने सोचा कि हम उसकी ज्योमेट्री पे काम करके उस यंत्रों की कॉम्बिनेशन से तरह तरह के सिस्टम्स को हम सोच के उस पर कुछ काम करें। यंत्र, अक्षर, आवृत्ति, हिब्रू अल्फाबेट्स, प्लूटोनिक सॉलिड और ग्लिफ्स, इन सबको मैंने कंबाइन करा है। ये मेरी अपनी सोच है, मुझे माफ करें अगर मैं इस सब्जेक्ट में रिसर्च बेस्ड आप लोगों की ओल्ड साइंस को ना समझ के अपनी तरफ से बता रहा हूं, बट ये मेरी खुद की सोच है, ठीक है। सो इसमें वी आर नॉट ट्राइंग टू डिबेट ऑन द ज्योमेट्री ऑफ भक्तांबर सूत्र, हाउ एंड व्हाई इट हैज कम। आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट आई हैव कंक्लूडेड following the frequencies and following the science of sacred geometry. Okay, तो ये इन सब systems को मैंने लिया है। और ये why sacred geometry? These shapes are believed to be sacred to life and unifying presence in four that could explain the nature of every facet and aspect of the universe. These shapes of nature are known as sacred geometry. ब्रह्मांड और पर्यावरण की रूपरेखा के को ही पवित्र ज्यामिति कहा जाता है, और ये नेचर में है, ये हम आंखों से देख सकते हैं। जो भी चीज नेचर में क्रिएट हुई है, जिसको लोग कहते हैं भगवान ने बनाई है, बट ये नेचुरल फिनोमिनाज है। जैसे हमारे आचार्य श्री और हमारे जैन तीर्थंकरों ने कहा कि ये धरती और ये पर्यावरण पहले से था, हमने जो देखा है वही हम आप बता रहे हैं। तो ये पहले से था, और ये था तो ये साइंस क्या था? और ये मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें बायोलॉजी है। ये सेक्रेड ज्योमेट्री एक हमारे शरीर के अंदर की संरचना को एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट जब करता है तो हमें अच्छा लगता है, और उसमें साउंड वाइब्रेशन मदद करते हैं। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दीज शेप्स, हाउ दीज पैटर्न्स आर पार्ट ऑफ द नेचर एंड व्हाई दे आर सो मिस्टिक, व्हाई देयर इज स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व्ड इन इट, व्हाई इन एंशिएंट टाइम्स पीपल हैव यूज्ड डिफरेंट मंत्रास फ्रॉम श्री यंत्र टू द बेसिक ग्लिफ्स टू द runes which they have marked on the caves when there was no light also. अंधेरे में उन्होंने नेचर की अंदर केव्स के अंदर पैटर्न्स बनाए थे, जिसको रून्स कहा जाता है। ये अलग अलग जगह हुआ था। एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टुडे इज टू शो यू दैट these geometries are there in nature and these geometries need to be understood. Why? Because we are trying to understand the magical effect of the sound vibration. As I have told you, यंत्र बिना मंत्र के अधूरा है, मंत्र बिना यंत्र के अधूरा है। तो पूरा जीवन, पूरी लाइफ
arises from the sacred geometry, because everything is pattern in the whole universe. And you yourself is the sacred geometry. हम खुद हमारे शरीर के एक एक अंग, एक एक ऑर्गन सेक्रेट ज्योमेट्री बेस्ड है. हमारी आंखें, हमारे फेस, हमारे हाथ, हमारे पैर और अंदर के ऑर्गन्स में सब में एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है. और उस पैटर्न को अगर हम समझें तो ये हमें पता चलेगा कि भक्तांबर स्तोत्र सुन के हमारे अंदर के कण कण जब वाइब्रेट होते हैं तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से होते हैं, क्योंकि स्तोत्र की फ्रीक्वेंसी हमारी ज्योमेट्री की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है. Okay, so this is what I wanted to prove. I wanted to tell you that everything is geometry, and there is a relationship between pattern and matter. और ये पुद्गल और ये जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रिएट जो एक आत्मा के साथ हमारा जो ढांचा है शरीर का, जो पुद्गल है, जो मैटर है, वो एक पैटर्न है. और उस पैटर्न को समझना ही साउंड वाइब्रेशन का सब्जेक्ट है, और इसी को हम साइमेटिक्स कहते हैं. और साइमेटिक्स के थ्रू हमने हमारे शरीर के अंदर की एक एक चीजों की ज्योमेट्री पे अंडरस्टैंड किया है. आप ये देख सकेंगे कि किस तरह से स्कल, किस तरह से ब्रेन, एवरीथिंग इज पैटर्न. और ये सब वाइब्रेट करते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटिंग साउंड. साउंड इज द पैटर्न ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाई भक्तांबर स्तोत्र इज द पैटर्न ऑफ योर पैटर्न फॉर हीलिंग द लाइफ. ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है. हम रोज हमारे हर त्योहारों में पैटर्न बनाते हैं. यही ज्योमेट्री हमें एनर्जी देती है, और इसी ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम यंत्र कहते हैं, जिसको हम मंडल कहते हैं. ये हमारे जैनिज्म, बुद्धिज्म ट्रेडिशन में मंडला की जब बात होती है तो दे आर 2 डायमेंशनल एंड दे अल्टीमेटली बिकम अ 3 डायमेंशनल, एंड व्हेन दे बिकम 3 डायमेंशनल दे बिकम टेंपल्स. पवित्र ज्यामिति को मैंने इस तरह से स्टडी करने की कोशिश की, एक एक शब्दों को, एक एक ज्योमेट्रीज को, एक एक सिंबल्स को कोशिश की कि वो प्रोपोर्शन में क्यों है और वो हमें अच्छे क्यों लगते हैं. उस पैटर्न को समझने के लिए मैंने बीजाक्षर पे काम शुरू किया. वो भी ज्योमेट्री का पार्ट था, और हर ज्योमेट्री, हर बीजाक्षर को 48 सूत्रों के साथ कनेक्ट किया. जब मैं ये पैटर्न स्टडी कर रहा था तो मैं उस समय एंटवर्प में था, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में. वहां पे मेरी कुछ मुलाकातें हुई हिब्रू और कबालिस्ट से. वहां पे कबाली जो होते हैं, जैसे हमारे आचार्य श्री हैं, वैसे उनके यहाँ कबाली होते हैं. कबालीस के पास अमेजिंग नॉलेज है. एंड मैंने रिलेट किया कि जूडिज्म में जैनिज्म का बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है. जूडिज्म हैज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस, फ्रॉम वेजिटेरियनिज्म टू द नॉट ईटिंग इन द नाइट, टू फॉलोइंग द पैटर्न्स, टू प्रीचिंग द गॉड, टू लिविंग द ब्रह्मचर्य लाइफ. ऑल दीज प्रोसेसेस, हमारे जो 5 प्रिंसिपल हैं जैनिज्म के, वही फॉलो करते हैं जूडिस्ट लोग भी. और उनके पास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्योमेट्री का. 48 नंबर उनके लिए भी बड़ा प्रिय है. 48 नंबर के साथ वो लोग भी काम करते हैं, और उसी प्रोसेस को मैंने आगे बढ़ा के उनके पैटर्न्स को थोड़ा अपनाने की कोशिश की, जो मुझे काम देता है एनर्जी मेजरमेंट में. प्लूटोनिक सॉलिड्स पे भी मैंने काम किया. ये हमारे 5 बेसिक सॉलिड्स हैं, जो अगेन कोई भी यंत्र बनाने में, कोई भी सीक्रेट ज्योमेट्री बनाने में इनका कॉम्बिनेशन जरूरी है, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर से निकला है. स्क्वायर धरती की ऊर्जा है. स्क्वायर इज द शेप ऑफ अर्थ, वाइब्रेशन ऑफ टेल्यूरिक एनर्जी. स्क्वायर से हम ऑक्टागन में आते हैं दूसरे लेवल पे, और ऑक्टागन इज द ह्यूमन एनर्जी कनेक्टिविटी. इसलिए हमारे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे समाज सिस्टम में 8 डायमेंशंस की बात की है. 4 इज द डायमेंशन ऑफ अर्थ, 8 इज द डायमेंशन ऑफ एनवायरमेंट, ह्यूमन बेस्ड environmental things and nature, which is connecting to the form then to the matter. And from square to octagon it reaches the brahmanic, which is circle, which is your spirituality, which is divinity. तो square से circle, circling the square के combination में octagon बीच में आता है, और उसी sacred geometry में हमने काम किया है. और उस sacred geometry की biochemical energy के साथ जब मैं काम कर रहा था तो glyphs हमें मिले. These are the symbols. These are the symbols which are generated out of physics and mathematics, and these symbols vibrate on solfeggio frequencies and cymatics, which again in turns are connected into the yantra which I have created. तो ये यंत्र क्रिएट करने में मैंने मेरे मदद किया. Secondly, I wanted to tell you how these yantras and how these 2-dimensional mandalas have reformed into the temples. So they, when you give the depth, when you give them the height, when you give them the volume, these yantras ultimately, with the rhythmic vibration of sound, if you give them the volume of sound, it becomes a temple.
और ये टेम्पल बन जाते हैं, और ये आप देख रहे हैं 2 डायमेंशनल यंत्र 3 डायमेंशनल टेम्पल के फॉर्म में आ जाते हैं। और जब अंदर बैठते हैं, जब मंदिर के अंदर, तो वो यंत्र और मंत्र दोनों की कॉम्बिनेशन से आपके तंत्र को स्ट्रॉन्ग एनर्जी देती है। हमारा तंत्र हमारा शरीर है। तो ये सीक्रेट ज्योमेट्री में यंत्र, बीज अक्षर, हिब्रू अक्षर, प्लूटोनिक सॉलिड और ग्लिफ्स, इन सब का मैंने यूज करके हमारे 48 एनर्जी कार्ड्स बनाए, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। 48 एनर्जी कार्ड्स किस तरह से बने थे और किस तरह से उनका प्रोसेस हुआ था, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने सबसे पहले बात की मंत्र की, उसके बाद हमने बात की यंत्र की, और यंत्र के बाद हम तीसरे एस्पेक्ट पे आ रहे हैं जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होती है, वो है यंत्र। मंत्र के साथ तंत्र। तंत्र इज द एनर्जी, और ये तांत्रिक एनर्जी को समझने के लिए ही मैंने पूरा प्रोसेस तैयार किया था, क्योंकि ये इन्फिनिटी ही एनर्जी है। इसलिए हम भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा कहते हैं, जो कि साउंड और ज्योमेट्री के साथ कंबाइन होके एक इन्फिनिटी वाइब्रेशन क्रिएट करती है, बिकॉज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो. So if you remove one part from the other part also comes into picture, and this common factor is the relationship between Jainism and Kabbalah philosophies. Kabbalah philosophy का infinity एक जोड़ था, 48 नंबर एक जोड़ था, और ये मैंने देखा कि वो उस पूर्ण की जो बात कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ती है। और कबाला ट्री ऑफ लाइफ को जब मैंने हमारे स्टैचूज में भगवान की, अभी आदिनाथ भगवान के स्टैचू में मैंने ट्री ऑफ लाइफ को कनेक्ट किया, आप देखेंगे कि वो सिंबल, वो वाइब्रेशन हमें 100% जो 10 एट्रीब्यूट्स हैं कबाला के, जो 10 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको वहां पे देखने को मिलते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर में, हमारी मूर्तियों में, हमारे बॉडी में वो कनेक्ट होते हैं। एक अद्भुत कोरिलेशन मेरे सामने आया। It was a coincidence, but then it gave me a thought and it gave me a process to create 48 infinity energy cards and then 48 infinity energy symbols and fragrances as well. Okay, इस पे मैं ज्यादा बात अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, कबाला ट्री ऑफ लाइफ, और किस तरह से it becomes a common thread of holding the elements of sound and geometry which has the impact on soul and matter. Okay, so this is something very unique. इसके साथ हमने टेट्रासाइड्स पे काम किया, which is again as I told you from square to circle, which comes through the process of Pythagoras equilateral triangle, and that is where we try to measure your vibration and try to give you an option कि कौन सा भक्तांबर सूत्र, कौन से वाइब्रेशन की आपके शरीर को जरूरत है। और इसी प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाते हुए उस सब्जेक्ट में लेके जा रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर 3 एनर्जी प्रोसेस होते हैं, कॉस्मिक सर से लेके गले तक, ग्लोबल गले से लेके नाभि तक, और टेलुरिक नाभि से लेके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तक। ये तीनों जोन्स को भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा के मंत्र और यंत्र तांत्रिक वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हैं, रेडिएट करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी होती है सन की, सन और मून की पावर, जो हमारे शरीर में हमेशा हमें मिलती रहती है। इट इज फ्रॉम द स्टार, इसको हम ब्रह्मांडिक ऊर्जा कहते हैं। ग्लोबल एनर्जी इज वैश्विक, जो हमने बनाया है, जो ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क की एनर्जी जो हमें मिल रही है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, बिल्डिंगों से, आर्किटेक्चर, वास्तु से, वो ग्लोबल है। और तीसरी है टेलुरिक, जिसको भौगोलिक ऊर्जा कहते हैं, जो जमीन के अंदर से आती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से। इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को मैंने चेक किया कि भक्तांबर स्तोत्र की मंत्र और यंत्र दोनों मिलके इन तीनों वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करते हैं, एनहांस करते हैं। इसीलिए भक्तांबर स्तोत्र हमें अच्छा लगता है, इसीलिए भक्तांबर स्तोत्र में हीलिंग पावर्स हैं। और ये जब चक्रास को, जब आपकी तीनों वाइब्रेशंस को कॉस्मिक ग्लोबल टेलुरिक को एक्टिवेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आपके चक्रास को अलाइन कर रहा है। क्योंकि शरीर के अंदर जो इनवर्ड और आउटवर्ड रेजोनेंस है, जो डायरेक्ट इंटरैक्शन है, वो बॉडी का हमारे 7 सेंटर्स के साथ है, जो लाइफ एनर्जी देते हैं। इसी प्रोसेस को जब मैं आगे बढ़ा रहा था, तो ये मैंने देखा कि भक्तांबर स्तोत्र दिशात्मक वाइब्रेशन भी देता है, क्योंकि जब वो तीनों एनर्जीज पे काम कर रहा है, तो वो 360 डिग्री में 48 को डिवाइड करेंगे तो 60.5 डिग्री में ये हर दिशा के साथ भी कनेक्ट रखता है। तो क्या उस दिशा में बैठ के मैं भक्तांबर स्तोत्र सुनूं जिसकी मुझे जरूरत है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा? हाँ, जरूर, क्योंकि वो दिशा की वाइब्रेशन भी आपको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मिलेगी। ये भी एक हमने प्रोसेस डिजाइन किया कि
कॉस्मिक ग्लोबल टेलरिक को अपलिफ्ट करता है भक्तांबर सूत्र। अनंत ऊर्जाएं दिशात्मक वाइब्रेशन हमारे शरीर में देती हैं। दूसरा, लेफ्ट और राइट ब्रेन, कॉग्निटिव थिंकिंग, योर इंट्यूटिव, योर इंस्टिंक्ट के साथ आपके इंटेलेक्ट को मिला के इंट्यूशन को डेवलप करने में भक्तांबर सूत्र का बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। हम उसको अगर समझें और ढंग से सुने और पर्टिकुलर सूत्रों की साधना स्तुति करें तो हम ये पाएंगे कि हमारे माइंड में अद्भुत डेवलपमेंट होने लगा है। हमारी मेमोरी बढ़ी है। फोटोग्राफिक, जो मैं मति ज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो विशिष्ट मति है, फोटोग्राफिक मेमोरी, इंटेंजिबल्स को देख लेना, जो चीजें दिखती नहीं है वो आपको एहसास होती है, आभास होना शुरू हो जाता है, वो सब होगा जब भक्तांबर सूत्र के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उस दिशा में बैठ के लेफ्ट और राइट ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ा के आप यूज करें। तो it works on left hemisphere and right hemisphere of the body. There are specific sutras which I have calculated, which I have put into my system. Only they can help. Okay. डायरेक्शन के साथ अब एलिमेंट्स पे जब हम जाते हैं तो भक्तांबर सूत्र एलिमेंटल वाइब्रेशन भी जरूर इग्नाइट करता है। पर्टिकुलर सूत्रों को सुने तो आपकी फायर एलिमेंट बढ़ेगी, पर्टिकुलर सूत्र को सुने तो शांतता बढ़ेगी जब आप एग्रेसिव हैं, पर्टिकुलर सूत्र को सुने तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, एयर एलिमेंट बढ़ेगा। ध्यान करना है, स्तुति करनी है तो एक पर्टिकुलर सूत्र है जिसमें वैक्यूम आकाश तत्व बढ़ेगा। तो ये सूत्रों को हम समझ सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और यही एनर्जी का सिद्धांत था जिसमें मैंने डायरेक्शन, नेचुरल एनर्जी और ट्री ऑफ लाइफ को कनेक्ट करके 48 भक्तांबर सूत्र की एनर्जी कार्ड्स बनाए। ये 7 बॉडी और 7 चक्रा के साथ काम करते हैं। हर सूत्र का एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है, उसका एक इंटरप्रिटेशन है, उसका एक अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट में वैराग्यरति जी महाराज साहब ने मुझे बड़ी मदद की। महीनों तक हमने हर शब्दों, हर सूत्र, हर सिस्टम पे, हर पैराग्राफ को स्टडी करने की कोशिश की और ये देखा कि उसका पर्पस क्या है। वो वाइब्रेशन के साथ उस दिशा में अगर मैं बैठूं तो मुझे क्या फायदा होगा, ये मैंने किताब में लिखने की कोशिश की है। ये किताब आपके पास अगर अमेज़न पे भी मिल रही है, ये किताब है 48 अनंत ऊर्जा की, पूरी मैंने डिटेलिंग दी है। शायद आपके सेंटर में एक कॉपी है अहमदाबाद में, वहां से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्योंकि तरह तरह के सूत्रों की तरह तरह की मीनिंग्स, तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस आपको मार्केट में मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, किताबों में लिखे होंगे। अब वो इंटरप्रिटेशन का एक्चुअल मतलब उन शब्दों का है, उसमें हिडन बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में जो कंपन थी, जो वाइब्रेशन थी, वो वैराग्यरति जी महाराज साहब ने मुझे बताई और हमने फिर एंटीना के साथ मेजरमेंट करके उसके इंटरप्रिटेशंस को फाइनल किया। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशंस पे हमने बात की है और ये बात करने के लिए ज्योमेट्री पे हमने समझने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा आपको मेरी नेक्स्ट रिसर्च, जो फाइनल रिसर्च हुई थी अनंत ऊर्जा की, साइंस ऑफ फ्रेग्रेंस की, जब मैंने ये देखा कि यंत्र और मंत्र के साथ भी लोगों का ध्यान बढ़ता है, तो मैंने कोशिश की कि हम एक पर्टिकुलर ऑल्फैक्टरी सिस्टम विच इज स्ट्रॉन्गर व्हेन यू स्मेल, तो हमने कोशिश की कि 48 अनंत ऊर्जा की, क्योंकि हम ईईजी पे काम करते हैं, हमारे पास एक मशीन है जो हम यहाँ पे लगा के वी ट्राई टू मेजर द ब्रेन वेव ऑन द स्पेक्ट्रोमीटर। और ब्रेन वेव पैटर्न जब मैंने चेक किया तो ये देखा कि सोत यंत्र और मंत्र के साथ तो आदमी का ध्यान हो ही पा रहा है, उससे 70 to 80% कॉन्सेंट्रेशन होता है। लेकिन अगर सेंट भी आ जाए और एक पर्टिकुलर स्मेल आ जाए, ये इस तरह की हमने 48 बॉटल बनाई हैं जिनको एक ड्रॉप उस दिशा में आपको टपका के भक्तांबर सूत्र की उस वाइब्रेशन को सुनना है। जब सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आपके माइंड को और विचलित और जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इन शॉर्ट ये सब प्रोसेसेस मैंने इसलिए बनाए कि ध्यान करने में मदद हो। भक्तांबर सूत्र के साउंड वाइब्रेशन को सुनने के लिए आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। और ध्यान कैसे होगा? जब आपको एक्स्ट्रा स्टिमुलेंट्स मिलेंगे, एनवायरमेंटल स्टिमुलेंट, साउंड की, स्मेल की, साइट की, टच की, ये चारों जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंद्रियां हैं, जो हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि जिसको कंट्रोल करती है, उनमें साइट, स्मेल, साउंड और टच को मैंने इग्नाइट किया है मेरे प्रोसेस से कि आप इनको साथ में रखे ही भक्तांबर सूत्र की स्तुति करें। और ये एट्रीब्यूट्स को मैंने द्रव्य, काल, भाव और क्षेत्र में डाला है।
ये बेसिक सिंपल प्रोसेस है, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। 6 एलिमेंट्स को भी ये एक्टिवेट कर देता है। अगेन रिसर्च है, ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इससे रिजल्ट आए। गत 10 सालों में कम से कम 2000 लोगों के पास मैंने ये साउंड वाइब्रेशन और एनर्जी कार्ड्स पहुंचाए हैं, और ये एनर्जी कार्ड जब लोगों तक पहुंचे हैं और उन्होंने उसको यूज किए हैं तो फीडबैक्स भी आए हैं। उस फीडबैक्स के नजरिए को देखते हुए मैंने इसका एक प्रोसेस डिफाइन किया है, और मैं कोशिश करता हूं कि ये पर्टिकुलर प्रोसेसेस, ये आप देखेंगे स्टेजेस ऑफ परसेप्शंस, हम इसको इग्नाइट करते हैं भक्तांबर स्तोत्र के मीनिंग लेवल पे, 5वें लेवल पे जो सब्जेक्टिव लेवल है, वहां पे भक्तांबर स्तोत्र की सीक्रेट ज्योमेट्री और फ्रेग्रेंस काम करती है। तो ये अगेन रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं where I have done lot of work on electro, there are so much of holographic information which is also related to how you perceive things from the environment. How do you actually inhale and exhale, and what is there between exhalation and inhalation? हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसके बीच में क्या होता है? So this is the energy system which we create, which is between two breaths. सांस लेना और सांस छोड़ने के बीच का जो समय है वो भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा को डिवाइड करता है। अगेन ये ईईजी वेव पैटर्न के रिसर्च है, किस तरह से ब्रेन फंक्शन चेंज होता है, कौन से स्तोत्र का क्या असर है, ये सब रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा डिटेलिंग आपसे करूं, समय बढ़ रहा है और हमें उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, साउंड, ज्योमेट्री, फ्रेग्रेंस, और ये सब यूनिवर्सल एनर्जी में काम करती हैं, इसको तंत्र कहते हैं। ये आपको मैंने कुछ चीजें दिखाई हैं, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ये S3 गोल्ड लेकर एंटीना है जिससे मैं वाइब्रेशन मेजर करता हूं और पता करता हूं कि 48 सूत्रों में से कौन से सूत्र की आपको जरूरत है। और वो इन्फिनिटी चार्ट हमारा इस तरह का है जिसमें हम कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक एनर्जी, साउंड वाइब्रेशन मेजर करते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, और ये इन्फिनिटी कार्ड के साथ मैं इसका मेजरमेंट करता हूं। समय के अभाव से मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगा आपको, बट कभी और बात चर्चा हो तो हम ये बता सकते हैं कि ये 3 टेट्रासाइट्स हैं, ट्री ऑफ लाइफ के पार्ट हैं, जिसके 16 सूत्र इसमें हैं, 16 सूत्र इसमें हैं, 16 सूत्र इसमें हैं, और ये ट्री ऑफ लाइफ से मैं आपकी एनर्जी सिस्टम निकाल पाता हूं और आपको बता पाता हूं कि कौन से सूत्र की आपको जरूरत है, कौन से साउंड वाइब्रेशन की आपको जरूरत है, कौन सी चीज आपके फ्रेग्रेंस की आपको जरूरत है। जैन साहब, मैं जस्ट कुछ मिनटों में कंप्लीट करूंगा, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं, एंड देन वी टॉक अबाउट इट। जैनिज्म मीट जूडिज्म, ये भी एक प्रोसेस मैंने तैयार किया है, इसमें ये कोशिश करने की, बताने की कोशिश की कि किस तरह से शरीर और वाइब्रेशंस, ये देखा आपने ट्री ऑफ लाइफ में 10 वर्टाइसेस हैं, 22 एजेस हैं, 16 ट्राइंगल्स हैं, जो टोटल 48 हो जाते हैं। इन्होंने भी 48 को बहुत विशिष्ट नंबर माना है, जो कि हमारा एक सिस्टम है। कौन से सूत्र आपसे निकलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, ये प्रोसेस है। किस तरह से मैं आपकी एनर्जी मेजर करूंगा, कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक, और उस तरह से पता करूंगा कि कौन सा सूत्र आपके लिए जरूरी है, और उस सूत्र को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मैंने सब लोगों के साथ कोशिश की है कि तरह तरह के प्लेटफॉर्म में जाके टॉक दूं, सिस्टम्स को समझाने की कोशिश करूं। इसके कुछ आपके प्रोसेसेस हैं, कुछ लोगों ने इसको सराहा है, मुझे कुछ अवार्ड भी दिए हैं और कुछ रिकॉग्निशन मिले हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी इंफॉर्मेशन आपको 48infinity.com पे मिलेगी, मेरे फोन नंबर्स हैं, आप कभी भी फोन कर सकते हैं और हम इस पे और चर्चा आगे कर सकते हैं। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। हाँ, बड़जात्या साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत भाव विभोर करने वाला है। यद्यपि पहले मैंने सुना था इसको, लेकिन वापस मेमोरी मतलब रिवाइव हो गई, और आपने आज जो कवर किया है वो शायद पहले कवर नहीं किया था, काफी टॉपिक्स, मतलब यस 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 यस, ये बहुत जोरदार वर्क है। मैं दूसरों को आमंत्रित करूं उसके पहले मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो बताना चाहूंगा आपको। जरूर सर, मैं नोट कर लेता हूँ हाँ, की पॉइंट, बताइए सर। एक तो रशियन साइंटिस्ट है गेरिएव, गेलियो, ना गेरिएव, गेरिएव, हाँ, गेरिएव, उन्होंने डेवलप किया कंसेप्ट वेव जेनेटिक्स का। यस यस यस, वेव जेनेटिक्स में वो कहते हैं कि जो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो अभी जो साइंटिस्ट मानते हैं वो केवल